हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। देयर इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हियर, द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन in a eukaryotics. Is there a lack occurrence in the cellulation and exhalations example of control of genes? The expression in the eukaryotics is a bacteria. It is on the invisible system and the switched on in the presence of the substrate. Lactose is an enzyme is a metabolism and lactose are a lactosidasis is the presence of transglutases and the gene that code from them get switched on. In the absence of lactose, they remains of switched off. Jacobs and Monod received the Nobel Prize from showing that a bacteria eukaryotes and has set of the genes forming operon and which regulate to expression of the genes is coding from the enzyme needed to the break down lactose. The eukaryotes is the most important is a bacteria that is showing to the Jacobs and Menodos receive a Nobel Prize on eukaryotes bacteria. This operon include to contain of genes lining close together on the chromosome. The next to the regulate of genes I and then includes the promoter is the genes P, which the RNA polymerase is identified at the time of transcription and operate the genes O is which the switches on the structure genes and the Z, Y according of the enzymes as the galactosidase and promise in the tractocytolase. So here is the working of the operon system is given below. There is absence of substrate lactose. There is the most important coding here. The mRNA is the regulator protein and non-transcription here. The part of DNA is equalized here. There I, P, O, Z, Y, A. There is the most important coding here. There is the regulate protein block is RNA polymerase cannot find P and ZYA remain switch off. But other side in the presence of lactose, there is a present of lactose. Their processing, their lack as open switch on here. There's RNA polymerase here. There I P O Z Y A and the mRNA and regulator protein attached to the lactose and B is a galactosidase in the hair and premise is also and transluterases is here. The act on lactose and the lactose metabolism into the glucose and galactose. There is a lack operon switch on their diagram. The regulation proteins attracted to the lactose and side open. The RNA the polymerase find a promoter genes is the ZYA switched on and transcription is a begin and the three enzymes are synthesis inside the cell. The above in the example of nuclearized system is responsible or system are also found in the eukaryotics. The genes regulations in the eukaryotics is the more complex. The gene expression can be regulated at the level of transcription on processing of hnRNA into the mRNA or translation are their post translation. And here show in this picture. Here to show the most important diagram. There is a transcriptions and control, the RNA processing control. There is a DNA is a primary transcription. mRNA goes with to mRNA nucleus and also goes with to there is a mRNA and translations is a control and their protein active control. Inactives is a protein here and cell membranes present in this and the mRNA degradations are control here. The level of gene control in eukaryote. A heritable change in the structure contain on organization of the genetical material that can be passed down to be next generation in the term of mutation. The mutation may be occur in the one genes and when it is a terminal point or mutation or may affect a number of genes on a part of chromosome. When it is a terminal to chromosomal mutation and the chromosomal mutation there then involved there is a number of genes. It is of two types. There are change in number of chromosomes and change the structure of chromosome. The number of chromosome in the individually of a specific is a fixed. For example, human have 2n means 46 chromosome and but sometime one or more chromosome may be lost or added and such a change to the number of term. The number for this is when 2n is a 45 or 2n is a 47 is a found in individual. Sometimes the whole set of chromosome may be duplicated, so that instance 2n is individually way
to post of 2, 3n and 4n chromosome is a polysaccharide. And here there is a chromosomal chain structure is also termed to the chromosomal aberrations. It is of four types. Deletions in which a piece of chromosome may be lost, and second is a inversions. Pieces of chromosome break off are rejoined into the several direction. And third is a duplication. The duplication of part of chromosome may be get represented twice. And the fourth step is a translocation. Is a piece from another chromosome will get attached. There is a most important is a chromosomal aberrations here. Four step: deletions, inversions, duplication, and translocation. Here is a gene mutation or point mutation. There is a most important topic here. A chain which affects only one gene is called gene mutation or point mutation. You already know that a gene is a segment of DNA and is made of the sequence of nucleotides. Whenever one nucleotide is changed within a gene, it's a case of change in the phenotypes. A gene mutation is the following types. Is the first transitions. Translation means when the purines base on the replaced by another purines base or bromidines base of another peptidine. There is a coding of ATGC. There is mean to the AGGC and AGGC. The next is a transversion when a purines base are replaced by the bromidines based on similarity. The bromidines based on the purines is here. According is the AT and GC. ATGC, there is a attached by ATGC. There is a most important. But other is a third is a frame shift. This a frame shift is sometimes due to loss or gain of one nucleotides. The readings. Frame of the genetic code for an entire as a protein changes means cat. There is a attached by the cat ATC as ATC. There is when C get a loss after cat. There is C get a loss of after cat. And mission there is a change in the genetic code due to replacement of a nucleotide mean a base. May give rise to different proteins. Example, sickle cell hemoglobin. There is affected or message changes. And fifth is there is a nonsense. If the genetic code change such that is a become a stop codon, the midway no proteins are formed. Example, a ZAA. There is goes with a GAA, UAA. The synthesis of stop of UAA is a stop codon. They are silent. And the sixth is a very silent when the changes in nucleotides does not be varying about any other phenotypical change because it is also codes from a same amino acid. Here the last topic is a mutagen. The mutagen is the last topic here. The agent that is a case of mutation is the genetical materials are called mutagen. The mutagens is belong to categories is a radiation and chemical. The radiation is a X-ray, UV ray and alpha radiation. And chemical is a mustard gas is actomycin D. There is a most important mutagen here. दोस्तों हमारा यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है जीन अभिव्यक्ति नियमन। देखिए इसमें बहुत काफ़ी हम बात जानेंगे जो कि बहुत ही ज़रूरी रहता है। कहते हैं जगह लैक्टोपैरोन यानी लैक्टोपैरोन जो है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। यह एक प्रेरणी तंत्र है जो प्रैक्टिस सबस्ट्रेट या लैक्टो सबस्ट्रेट की उपस्थिति में जिसका उपचार किया जाना चाहिए होता है चालू हो जाता है और लैक्टोज के जो है उपाच्य के लिए प्रिक्वियल जो है ग्लूकोसाइडेस एमिलो यानी ट्राइसिस्टोलेज और उनके लिए कोड करने वाले जीन स्विच ऑन यानी चालू हो जाते हैं। कहते हैं लैक्टोज की अनुपस्थिति में ये स्विच ऑफ यानी बंद हो जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ दर्शाया गया है। कहते हैं अगर जैकब्स और मेनोडॉस के यह दर्शाने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था यानी जैकब और मेनोडॉस को जो है इस पर नोबेल पुरस्कार दिया था क्योंकि उन्होंने क्या किया था स्टेरोसिया कोलाइड यानी ई कोलाइड्स को जो है काफ़ी बैक्टीरिया में एक आरोपण से निर्मित करने वाले जीनों का एक समूह है जो लैक्टोज विघटन के लिए आवश्यक प्रक्रिया के लिए जीन कोडिंग की विविधता का नियमन करते हैं। यानी इनको जो है ई कोलाइड्स के लिए उनको जो है नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था क्योंकि ये बैक्टीरिया के लिए निर्मित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था।
कहते हैं ऑपरेशन में क्रोमोसोम पर नियामक जो है जीन आई के समीप पाए जाने वाले जीन सम्मिलित होते हैं और इसमें जो है प्रोमोटर जीन पी भी हैं जो कि अनुलेखन के समय आरएनए पोलीमरेज द्वारा पहुंचा दिया जाता है। और कहते हैं ऑपरेटर जीन जो कि सकारात्मक जीन ZYA को व्यक्ति 3 अकुरण के लिए स्विच ऑन चालू कर देता है, यानी ये तीनों जीन को क्या कर देता है, स्विच ऑन कर देता है और शुरू कर देता है। अगर इस बात को हम डायग्रामेटिक देखने की कोशिश करें तो हमें पता लगेगा कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होता है। देखिए लैक्टोज की अनुपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पर अगर आप देख रहे होगा डायग्राम, तो यहाँ पर बहुत ही इजी डायग्राम है। निर्णायक प्रोटीन आपको दिख रहा होगा, अब कोई ट्रांसलेशन नहीं हुआ है ये भी दिख रहा होगा, और यहाँ mRNA के भी दिखाया गया है जिसमें इकोलाइट्स के DNA का एक भाग दिखाया गया है। अगर लैक ऑपरेशन में जो है इसमें जो है क्या होता है, इसमें अनुपस्थिति होती है। कहते हैं निर्णायक प्रोटीन O को बाधित करती है और RNA जो है पोलीमरेज P को प्राप्त नहीं कर सकता है और ZY और जो है स्विच ऑफ बंद हो रहते हैं। इसमें जो है Y और A जो होते हैं और Z जो होती है स्विच ऑफ होता है, बाकी सब के सब ऑन होते हैं। अब जो हमारा डायग्राम दिखाया गया है लैकेज के उपस्थिति में, देखिए लैकेज के उपस्थिति में क्या दर्शाया जाएगा। यहाँ पर आरएनए पोलीमरेज आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इसमें निर्णायक प्रोटीन दिखेंगे जरा जुड़ा हुआ, लैक्टोज दिखेगा और बी ग्लोरोसाइटेस भी दिखेंगे और इसमें पेरीएमेज और जो है ट्रांसलेज भी दिखेगा। कहते हैं लैक्टोज पर कार्य करते हैं और इसका उपचय के ग्लूकोज ग्लूमेटेस में हो जाता है। तो इस प्रकार जो इसमें उपस्थिति में अनुपस्थिति में दोनों ही क्रियाएं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और दोनों चीज़ें जो है अपने जगह पे बहुत विशेष स्थान भी रखता है। इसमें डायग्राम में जो है नियामक लैक्टोज की ओर आकर्षित की होता है और वो स्थान हमेशा खुला हुआ रहता है, यानी यहाँ पर आरएनए जो है पॉलीमरेज को जो है प्रोमोटर जीन मिलते हैं और ZYA स्विच ऑन यानी चालू हो जाते हैं, अनुलेखन आरंभ हो जाता है और कोशिका के अंदर 3 जो प्रविकरणों का संश्लेषण भी हो जाना संभव होता है। कहते हैं उपरोक्त उदाहरण जो है प्रेरणी तंत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है और प्रोकैरियोटिक में दमनीय तंत्र भी पाए जाते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और यूकैरियोटिक्स में जीन जो है नियमन अनेक प्रकार से अधिक जटिल होते चले जाते हैं और जीन अभिव्यक्त का नियमन जो है अनुलेखन के स्तर पर या HNRNA और mRNA में संसाधन में ट्रांसलेशन अथवा अनुवाद के पश्चात ऐसा होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहता है और इसको आप डायग्रामेटिक भी समझ सकते हो। यहाँ पर जो डायग्राम दिखाया गया है वो यूकैरियोटिक में जो है जीन नियंत्रण किस प्रकार होता है और इसमें क्या महत्व है, इसको विषय में यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया गया है ड्रामेटिक, यानी डायग्राम के रिगार्डिंग दिखाया गया है। जो आपको सेल दिख रहा होगा, इसमें अगर आप देखोगे तो DNA अनुलेखनी नियंत्रण, RNA संसाधितता नियंत्रण और प्राथमिक अनुलेख और mRNA दिखाएगा और इसमें केंद्रक भी आपको नजर आएगा। तो ये सारे कोडिंग का ही पार्ट है। अगर आगे हम देखें तो ये कोडिंग जो है आगे बढ़ जाती है, जैसे ट्रांसलेशन नियंत्रण, mRNA निम्नीकरण नियंत्रण और प्रोटीन क्रिया नियंत्रण, अक्रिय प्रोटीन, कोशिका झिल्ली। तो ये सारे चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट होती है कोडिंग के लिए। तो ये आपको दिखाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है जीन नियंत्रण के विषय में। कहते हैं अगर हम अनुवांशिक पदार्थ की संरचना अथवा अंश या संगठन में वंशागति परिवर्तन जो कि अगली पीढ़ियों के हस्तांतरित किया जा सकता है उत्परिवर्तन कहलाता है, यानी उत्परिवर्तन किया जाता है। इसमें उत्परिवर्तन एक जीन में भी हो सकता है, इसे बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं और ये क्रोमोसोम के एक भाग में कई जीन को प्रभावित कर भी सकता है, इसे गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन भी कहते हैं। कहते हैं गुणसूत्रीय उत्परिवर्तन में क्या होता है, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में इसमें कई जीन जो है संयोजित होते हैं और ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो होते हैं गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण और दूसरा जो होता है गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन के कारण। तो ये जो है उत्परिवर्तन इन्हीं कारणों से होती है कि गुणसूत्रों की संख्या में किस प्रकार की परिवर्तन हुआ है और गुणसूत्रों की संरचना में किस प्रकार की परिवर्तन हुआ है। अगर किसी एक प्रजाति के विशिष्ट इंडिविजुअल में गुणसूत्रों की संख्या नियमित है, उदाहरण के लिए अगर मानव में देखें तो आप देखोगे कि इसमें 46 पाया जाता है, लेकिन इसमें 2n की क्रोमोसोम होते हैं यानी 46 के रूप में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन कभी कभी ये नष्ट या युग्मित भी हो सकते हैं, जिसके कारण आपको पता ही है कि बहुत से डिसीज के बारे में हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, वो सारे डिसीज हो सकते हैं, ठीक है। उसमें सिंड्रोम कई तरह के सिंड्रोम पाए जा सकते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम की वजह से ही ऐसा होता है और ये क्यों होता है, क्योंकि क्रोमोसोम जो होती है नष्ट हो जाती है, ठीक है। संख्याओं में ऐसी परिवर्तन जो है अनगुणित यानी एम्प्लोलिट्स कहलाता है। कभी कभी क्रोमोसोम का पूरा समुच्चय द्विगुणित हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप विशिष्ट यानी इंडिविजुअल में 3n और 4n क्रोमोसोम हो सकते हैं। इसे हम बहुगुणित यानी पोलोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। कहते हैं गुणसूत्रों संरचना में परिवर्तन के गुणसूत्री जो है विपक्षण यानी क्रोमोसोमल एवरेशंस भी कहते हैं। ये 4 प्रकार के हो सकते हैं,
ठीक है। अगर देखो 4 प्रकार तो ये है, पहले लोपन है यानी डिटेक्शन, जिसमें क्रोमोसोम का एक खंड टूट कर निकल जाता है, यानी इसमें डिटेक्शन होती है। दूसरा होता है प्रतिलोपन, यानी प्रतिलोपन में क्या होता है, जिसको हम इन्वर्शंस भी कहते हैं, इन्वर्जन्स। इसमें क्रोमोसोम का कोई अंश टूटकर अलग हो जाता है और उल्टी दिशा के क्रम में फिर से जुड़ जाता है। उसके बाद है ध्रुवीकरण यानी डुप्लीकेशन। इसमें जो है क्रोमोसोम का दोबारा निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और एटलीस्ट जो है ट्रांसलोकेशन, या ट्रांसलोकेशन में मतलब यही होता है कि एक क्रोमोसोम में दूसरे क्रोमोसोम का खंड जुड़ जाना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये चारों के चारों जो है क्रोमोसोमल एब्रिविएशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे डिलेशन हो या इन्वर्शन हो या डुप्लीकेशन हो या ट्रांसलेशन हो। लोपन, प्रतिलोपन, द्विगुणित और ट्रांसलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम व्यू से भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो यहाँ पर जो है जीन म्यूटेशन यानी उपरिवर्तन, या इसको बिंदु उपरिवर्तन भी कहते हैं, वह परिवर्तन जिसमें केवल एक ही जीन प्रभावित होता है उसे जीन उपरिवर्तन या बिंदु उपरिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। आपका पूर्व ज्ञान है कि जीन डीएनए का एक खंड होता है और इसको न्यूक्लियोटाइड्स के एक अनुक्रम का ही बना होता है। जब कभी हम जीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन होता है तो इसे हम फिनोटाइप्स में परिवर्तन हो जाता है, जैसे हम जीन उपरिवर्तन के नाम भी दिया जाता है। अब यहाँ पर कुछ बातें हैं जिसको आपको जानना चाहिए। पहला हमारे समक्ष आता है ट्रांजिशन। देखिए ट्रांजिशन क्या होती है, कहते हैं जब एक पिरोस बेस का दूसरे पिरोस बेस से या एक पिरोडोमिन बेस का दूसरे पिरोडिन बेस से प्रतिस्थापन होता है तो इसको हम ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ पर कोडिंग दिया हुआ है ATGC ATGC, यानी इसका मतलब होता है कि ये जो बनेगा वो AGC और ATGC के रूप में रूपांतरित होगा। लेकिन हम ट्रांसवर्जन देखें, ट्रांसवर्जन जो होती है वो जब एक पिरोडिन बेस का जो है प्रतिस्थापन दूसरे पिरामिडन बेस से हो जाए तो इस प्रकार जो पिरामिडन बेस दूसरे पिरामिडन बेस से प्रतिस्थापन होता है तो इसको हम ट्रांसवर्जन भी कहते हैं। यानी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ATGC में है, इसका ATGC के रूप में बदल गया। लेकिन आगे अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि फ्रेम शिफ्ट आएगा। फ्रेम शिफ्ट जो होती है कभी कभी एक न्यूक्लियोटाइड्स की हानि या प्राप्ति के कारण पूरे जीन व जीनों के कोड बढ़ने का फेस बदल जाता है। जैसे आप देखोगे यहाँ पर कैट यानी CAT बनाया गया है, लेकिन अगर दूसरे में देखोगे इसका जो बनता है वो CAT एक बनेगा, उसके बाद ATC के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारे जो होते हैं कभी कभी हानि की वजह से ऐसा देखने को मिला है और ये सारे विकार तो आप पहले भी जान चुके हो। उसके बाद है हमारे समक्ष मिसोसेंस जो होती है न्यूक्लियोटाइड्स के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप देखने को मिलता है। कहते हैं आनुवंशिक कोड में परिवर्तन से एक दूसरा प्रोटीन जैसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन पैदा हो सकता है। यानी ये भी एक बीमारी है जो कि किसकी वजह से होता है, मिससेंस की वजह से होता है, यानी न्यूक्लियोटाइड्स के प्रतिस्थापन के परिणाम स्वरूप ये देखने को मिलता है। उसके पश्चात हमारा है फिफ्थ नॉनसेंस। देखिए नॉनसेंस भी इसमें इंपॉर्टेंट स्थान रखता है। कहते हैं यदि आनुवंशिक कोड इस प्रकार परिवर्तन होता है जिससे यह आधे रास्ते में ही एक निरोधक यानी कोडन स्टॉप कोडन बन जाता है तो कोई भी प्रोटीन उत्पन्न नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है कि GAA और AAGAA के रूप में होता है, लेकिन ये जो फॉर्मेशन होती है वो GAA UA और AA के प्रोटीन के संश्लेषण रुक जाता है, क्योंकि इसमें UAA का जो है विरोधी कोडन हो जाता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बात भी यहाँ रखता है और ये काफ़ी खतरनाक भी रहती है जीन्स के लिए। उसके बाद है साइलेंट। देखिए साइलेंट का मतलब होता है चुप, साइलेंट है। जब न्यूक्लियोटाइड में परिवर्तन में कोई अभिलक्षण रूपी फिनोटाइपिक परिवर्तन नहीं होता है तो उसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, साइलेंट। ठीक है, यानी इसमें कोई तरह के जो है लक्षण परिरूपी नहीं होता है, तो इसका मतलब वो साइलेंट फीचर में जा चुका है। उसके पश्चात हमारा अंतिम टॉपिक है वो है म्यूटेजन। म्यूटेजन जो होती है आनुवंशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन करने वाले अभिकर्ता म्यूटेजन कहलाता है। म्यूटेजन सर्वों में दो होते हैं, एक तो होते हैं विकिरण, एक होते हैं रसायन। अगर रेडिएशन में हम देखें तो एक्स किरण, UV किरण विकिरण आपको नजर आएगा, लेकिन रसायन में हम देखें तो इसमें मस्टर्ड गैस होती है और जो है एक्टिनोमाइसिन D पाया जाता है।